So let's talk about how can we treat the anxiety. Either we can do psychotherapy or we can go with the drugs, right? तो first we try with cognitive behavioral therapies, right? So आपको बहुत सारे उसके sessions anxiety की conduct करने पड़ेंगे as a psychologist, and you need to come to the root cause of why that person is having anxiety of something. Maybe it can be post traumatic stress disorder or phobia to some particular incident because that person has faced that incident in their childhood, or some childhood trauma can be there. So all those things comes under into the cognitive behavior therapy. So once you get to know about that person is suffering from some type of anxiety, so you can give them a book or something so that they can jot down all their problems in that, to write that situation or to express your feelings onto the paper. और यू कैन हैव द सेशंस, आउटडोर सेशंस, लाइक पहले उसको कार चलाने में दिक्कत आती थी, नाउ यू अलॉन्ग विद सम एक्सपीरियंस पर्सन ट्राई टू मूव अलॉन्ग विद दैट पर्सन कि आप थोड़ा सा कार चलाओ, सिर्फ अभी एक रोड पे जाना है. देन यू आस्क देम टू मूव टू 1 kilometer, एंड देन स्टेप बाय स्टेप यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, and that will develop the confidence in the person, or help them recover the post trauma. So all these therapies come under psychotherapy. Other thing is, as a pharmacologist या फिर as a doctor, you need to give them drugs, right? कुछ ना कुछ ऐसे drugs patient को देने पड़ते हैं जिसकी वजह से आप उसकी anxiety कम हो, because sometimes the anxiety is so much higher that the patient is not able to sleep. तो अगर वो sedatives हमें देने पड़ेंगे, mild sedative action, so that the patient is able to sleep and have that calmness in their body. So it becomes a mandate for us to add. So in pharma you will be specifically asked about what is the classification of the anxiolytic drugs. तो anxiolytic drugs के अंदर हमारे पास 6 major classes of drugs हैं which you should be knowing and which are very very important for you. First is benzodiazepines. So you should be knowing about benzodiazepines. Then 5-HT reuptake inhibitors means SSRI SNRI वाली कैटेगरी हो जाएगी या एंटी डिप्रेसेंट्स वाली कैटेगरी हो जाएगी. देन becomes the beta blockers, and then comes the MAO inhibitors, a very specific category of the drug, that is 5-HT1A partial agonist. These are the category of the drugs which are really specific to the anxiety disorders only, right? Specific topic is anti-anxiety drugs only, so I'll not be going very much in detail about the each category of the drug, but I'll be giving you a brief outlook. Sedative hypnotic के पास भी एंटी एंजाइटी वाला एक्शन होता है, एंड इन द लोअर डोजेस बेंजोडाइजेपिन्स डू एक्ट लाइक एंक्सियोलिटिक्स. तो बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में बच्चों क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये गाबा का रिसेप्टर होता है एंड क्लोराइड इज नॉट एबल टू एंटर इट. यू गिव benzodiazepines, they will help into the binding of the GABA to the chloride ion channel, and it will help into the opening of those channels, which will further lead to the hyperpolarization of the cell. And once the cell or the chloride start entering, तो अंदर वाली साइड बहुत ज़्यादा chloride enter कर जाएगा. तो क्योंकि अंदर वाली साइड बहुत ज़्यादा negative ion का accumulation हो जाएगा, so it will lead to the reduced neural excitability. देखो, glutamate is an excitatory neurotransmitter and GABA is an inhibitory neurotransmitter. By far we know, right, that. So अब मैं GABA के अंदर जब मैं बोल रही हूँ कि it is an inhibitory neurotransmitter, तो मुझे actually inhibition ही कराना है क्योंकि मेरी body बहुत ज़्यादा restless है, मुझे anxious feeling हो रही है and I am not able to sleep. So all those things are actually because of the excitability of the neurons in my body. So what I really want कि मैं inhibition कर सकूँ उन सब चीज़ों का, तो I need GABA channels or the GABA receptors. ठीक है, तो benzodiazepines helps in providing more of the negative things inside, or the more of the negative chloride channels inside, so which will make it more difficult to polarize, and that will finally reduce the neural excitability, and that will help calm my patient and help sleep my patient. So that is the basic mechanism through which the benzodiazepines helps as anxiolytics, right? So as we all know कि benzodiazepines के पास क्या suffix होता है, जोलैम्स या जिपैम्स के नाम से ये एंड होंगे. तो जैसे एल्प्राजोलैम या फिर ट्रियाजोलैम, एस्टाजोलैम, लोराजिपैम, डाइजिपैम, फ्लुनाजिपैम, सी ऑल दोज ड्रग्स आर इन द कैटेगरी ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स. ठीक है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 3 तरह की क्लासिफिकेशंस में हम लेते हैं बेंजोडाइजेपिन्स को. आइदर दे आर शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग. मतलब बहुत कम ड्यूरेशन के लिए 3 से 8 घंटे काम करने वाले बन जाएंगे शॉर्ट एक्टिंग, जैसे ऑक्साजिपैम. इंटरमीडिएट एक्टिंग लाइक क्लोराजिपैम या फिर एस्टाजोलैम.
एल्प्राजोलैम, ऑल दीज आर 10 से 20 घंटे काम करने वाले, और जो आपका 1-1 2-2 दिन काम करते रहेंगे, सो दोज बिकम्स द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले बेंजोडाइजेपिन्स विच आर डाइजीपाम या फिर क्लोरडाइपॉक्साइड। इसका नाम ही इतना बड़ा है, सो इट बिकम्स अ वेरी लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। तो व्हाट आर द मेजर सब टाइप्स ऑफ द गाबा ए रिसेप्टर। तो गाबा ए रिसेप्टर के अंदर तुमको ये इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि जो सिडेटिव एक्शन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मोर ऑफ द गामा 2 एंड अल्फा 1, whereas the anxiolytic action is shown more by the gamma 2, alpha 2 and alpha 3. So now we talk about the pharmacokinetics of the benzodiazepines. They are lipid soluble, they are well absorbed orally, आप इन्हें orally दे सकते हैं। क्लोरडाइपॉक्साइड as I have told सबसे लॉन्गर नेम है, तो लॉन्ग एक्टिंग से ऐसे भी याद रख लो, जब भी कोई क्रॉनिक एंजाइटी होगी पेशेंट के अंदर तो आप उसको क्लोरडाइपॉक्साइड दे सकते हैं, ठीक है। देन दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर, तो हम इट इज़ नॉट वेरी सेफ टू बी गिवन इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स एट्स इट कैन कॉज फीटल डिप्रेशन या फिर नियोनेटल डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉट टू बी गिवन इन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या शो करता है बेंजोडाइजेपिन्स, एज वी नो मेजरली वो एक सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है, बट इट ऑल्सो शोज द एंजाइटोलिटिक एक्शंस एट द लोअर डोजेस। तो आप कम डोज के अंदर उसमें से एंजाइटोलिटिक एक्शन ले सकते हैं विच विल हेल्प काम द पेशेंट एंड नॉट ओनली जस्ट मेक देम सिडेट, राइट। अब जैसे लोराज़ेपैम किस में दे सकते हो, इट इज़ अ शॉर्टर एक्टिंग ड्रग। ऑक्साज़ेपैम एल्डरली patients with the anxiety are preferred and diazepam is given in the patients with acute anxieties, ठीक है। डायरेक्ट MCQ आता है, acute anxiety में क्या देना है, chronic anxiety के अंदर क्लोरडाइपॉक्साइड देना है, so you should be knowing it, ठीक है। एंटेरोग्रेड एमनीजिया कॉज कर सकता है ये, and some of the benzodiazepines also show anticonvulsant action like diazepam, clonazepam. These can also be given as anti-epileptic drugs, ठीक है। Then we talk about the therapeutic uses. As I have told कि therapeutic uses के अंदर anxiety disorder में severe anxiety से short term relief कर सकते हो, generalized anxiety disorder, OCD इन सब के अंदर, या panic disorder तक में भी आप दे सकते हैं benzodiazepines. So benzodiazepines are the first line treatment या first choice drug जिससे आप किसी भी एंशियस पेशेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे आर द फास्टर एक्टिंग, सो दे प्रोवाइड द एक्शन विद इन हाफ आवर टू 1 hour की ड्यूरेशन के अंदर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजोडाइजेपिन्स प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी दिया जाता है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीजिया लाइक मिडाजोलैम, डाइजेपैम, ये सब भी दिया जाता है। बट अभी के लिए आप बेंजोडाइजेपिन्स का ओवरऑल इतना मत जानो, बस इतना जानो कि एंजाइटी के अंदर क्या यूज़ है। फिर दूसरी चीज़ हमें ADRs क्या हैं। देखो बेंजोडाइजेपिन्स तो आपने दे दिया, बट इट कॉजेज मोटर इनकोऑर्डिनेशन, एटेक्सिया हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, पेशेंट को एबिलिटी नहीं रहती कि वो ड्राइव ठीक से कर पाए। एंटेरोग्रेड एमनीजिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट विच इज़ कॉज्ड बाय बेंजोडाइजेपिन्स। हैंगओवर हो सकता है, टॉलरेंस डेवलप हो सकती है अगर आप कॉन्टिन्यूस लॉन्ग टाइम तक बेंजोडाइजेपिन कंज्यूम करते रहेंगे, या फिर आपको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी या फिजिकल डिपेंडेंस भी देखने को मिल सकती हैं। सो दीज आर नॉट वेरी गुड क्लास ऑफ ड्रग बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स इन्वॉल्व विद देम। या देर कैन बी रिस्क ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स हो सकता है, आपको कन्वर्जन्स, ट्रेमर्स, एंजाइटी डेवलप हो सकती है। इवन दे कैन शो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन विच कैन बी सीन ओनली इन द टॉक्सिक डोजेस। तो अगर बेंजोडाइजेपिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो आप उसका एंटीडोट दे सकते हैं विच इज़ फ्लूमाजेनिल, राइट। तो फ्लूमाजेनिल कैन बी गिवन एज अ एंटीडोट। देन यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस कि जब आप बेंजोडाइजेपिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप CNS डिप्रेसेंट्स के साथ में मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बेंजोडाइजेपिन आप दे रहे हो, आप साथ में अल्कोहल ऐड मत करो। इट विल लीड टू द मोर इफेक्ट ऑफ और द मोर टॉक्सिसिटी ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स, एनहांस इट्स इफेक्ट। या फिर जो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स हैं लाइक सिमेटाडीन, एरिथ्रोमाइसिन, वो T-half बेंजोडाइजेपिन्स का बढ़ा देंगे, फिएंटोइन T-half कम कर देगा। सो आपको कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस याद रखनी है टू प्रिवेंट all the effects. Now we come to the other category of the drug which is the 5-HT1 partial agonist. So these are partial agonists and they are also given rapidly absorbed orally but they show the delayed effect. उनका slow onset of action होता है, 1-2 weeks में उनका action show होता है, that is buspirone, very very important, buspirone, ठीक है। रोने की ज़रूरत नहीं है बस में, ठीक है, तो बस में पियो और रो मत। तो रोना किस लिए आ रहा है, क्योंकि आप एंशियस हैं तो आपको रोना आ रहा है, तो बस पे रोन इज़ बस करो, पी लो,
पानी पी लो और रो मत, ठीक है। तो बसपिरोन और इसका टी हाफ क्या होता है, 2 to 4 आवर्स का टी हाफ होता है जो आपको देखने को मिलता है। 5-HT1 का पार्शियल एगोनिस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से ड्रग्स हैं इसी कैटेगरी में, जीपिरोन है ना, इप्सापिरोन, ऑल दीज कैटेगरी, ऑल दीज ड्रग्स विच शो, इनके पास क्या होता है, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स भी होते हैं। सो दे हैव दैट डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑटो रिसेप्टर वाला एक्शन भी ये खुद शो कर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर एक्शन। अच्छी बातें क्या हैं, क्योंकि ये सिर्फ इकलौता ऐसा ड्रग है, जैसे हम बात कर रहे हैं बेंजोडाइजेपिन्स या SSRI, SNRI, तो SNRI, SSRI आर एंटी डिप्रेसेंट्स प्राइमरली, या फिर सिडेटिव हिप्नोटिक्स में प्राइमरली बेंजोडाइजेपिन्स, तो उनका अपना प्राइमरी एक्शन है। बट बसपिरोन का सिर्फ प्राइमरी एक्शन एंजाइटी में ही है, तो इट इज़ द ओनली एंजाइटोलिटिक्स विद द प्रॉपर एंटी एंजाइटी एक्शन। तो ये कोई हिप्नोटिक इफेक्ट नहीं देते, मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट, कोई एंटी कन्वल्सेंट एक्शन नहीं आएगा, अल्कोहल को देने के साथ में इनके साथ कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मेमोरी और आपका कोऑर्डिनेशन को इम्पेयर नहीं करेंगे जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स कर रहे थे, आपकी ड्राइविंग स्किल्स को अफेक्ट नहीं करते, डिपेंडेंस इतनी जल्दी इनमें डेवलप नहीं होता और आपको कोई विड्रॉल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। सो एनी हाउ दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बेटर ड्रग्स एज कम्पेयर टू द बेंजोडाइजेपिन्स। तो हम बसपिरोन देते कहाँ हैं, दीज आर यूज्ड इन द माइल्ड एंजाइटी पेशेंट्स एंड द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, तो एज गिवन एज एंजाइटोलिटिक्स ओनली, बट इन द माइल्ड एंजाइटी या GADs के पेशेंट के अंदर दिया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिलेड एक्शन है, वो तो आधे घंटे के अंदर उनका इफेक्ट आने लग जाता है, तो जो एक्यूट पेशेंट है उसको तो फटाफट से इफेक्ट चाहिए, तो आप जो प्रोवाइड कर सकते हो विद बेंजोडाइजेपिन्स, बट इस केस के अंदर उसको बहुत टाइम लगेगा टू प्रोवाइड द एक्शन। आपको डिजीनेस, GIT, ड्राउजीनेस और सीवियर एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर में ये इतने कामयाब नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको बसपिरोन के साथ देखने को मिलेंगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ SSRI. When I talk about the SSRI में जैसे फ्लोक्सिटिन या सर्टेलिन, ऑल दीज ड्रग्स, ये क्या करती हैं, दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द अपटेक ऑफ द 5-HT। तो अब 5-HT को वापस से अपटेक नहीं होने देंगी, तो वो क्या होगा, वो साइनैप्स में ही रह जाएगा। तो जब साइनैप्स के अंदर 5-HT रह जाएगा तो आपका हैप्पी हार्मोन ज़्यादा वहीं पर रहेगा, तो आपको एंजाइटी या सैडनेस कम होगी, दैट इज़ वाई वो डिप्रेशन के अंदर दिया जाता है। सो दीज आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ OCD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बट अब तक हमें ये बात पता है कि जो SSRI या SNRI जितने भी ऐसी कैटेगरी एंटी डिप्रेसेंट्स वाले ड्रग हैं, दे टेक 2 weeks टू शो देयर एक्शन। तो डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ द डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, है ना, ये हमने पढ़ रखा है एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर। तो जब वहाँ तब तक हमें उन 2 weeks के लिए क्या करना होता है, हमें बेंजोडाइजेपिन्स ऐड करने होते हैं। सो वी ऐड बेंजोडाइजेपिन्स अलॉन्ग विद SSRI सो दैट बेंजोडाइजेपिन्स तब तक वो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो फटाफट अपना काम शुरू कर देंगे एंड धीरे धीरे हम SSRI का एक्शन का वेट करेंगे। जैसे ही SSRI का एक्शन आने लग जाएगा, we start reducing or tapering the dose of the benzodiazepines. So this is how the actual protocol for the anti-anxiety works, right? Side effects of SSRI, delayed onset of action, 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, तभी benzodiazepines combine कर रहे हो for its action। नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, वेट गेन पेशेंट को देखने को मिलता है, ड्राई माउथ होता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सीजर्स, ये सब आपको देखने को मिल सकता है पेशेंट में। TCS, आप TCS भी दे सकते हैं, बट बिकॉज वी हैव बेटर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स लाइक SSRI, SNRI प्रेजेंट, सो हम इस समय हम डॉक्सिपिन या इमिप्रामीन जैसे ड्रग्स नहीं देते। अगेन दे हैव द सेम एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द अपटेक ऑफ द 5-HT एंड NORAD, तो उससे भी क्या होगा, आपके एंजाइटी और डिप्रेशन वाले सिम्टम्स कम हो जाएंगे। पैनिक अटैक्स वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनमें फियर एंजाइटी डेवलप हो जाती है। अगेन एक्शन आने में 2 हफ्ता लगता है। साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, लाइक एट्रोपिन लाइक एक्शन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, टेकिकार्डिया, यूरिनरी रिटेंशन, या आपको पोस्टल हाइपोटेंशन, वेट गेन। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी डोंट यूजुअली प्रेफर गिविंग TCS. Then comes the monoamine oxidase inhibitor. So MAO inhibitors like phenelzine and niacinamide. So these are the drugs which act by inhibiting or blocking the enzyme MAO, and these are also given for the panic attacks and phobias. आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको इन पेशेंट्स को चीज़ के साथ या बियर, वाइन, फर्मेंटेड फूड्स के साथ नहीं देना, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कंटेन टायरामीन, चीज़ कंटेन्स टायरामीन, एंड आपको फिर वहाँ पे चीज़ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो दीज पेशेंट्स डू हैव साइड इफेक्ट
इफेक्ट्स अगर आप उन्हें माओ इनहिबिटर्स दे रहे हो, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, रेस्टलेसनेस या फिर ड्रग इंट्रैक्शंस या ड्राई माउथ आपको देखने को मिल सकता है. सो वी ऑल्सो हैव अनदर कैटेगरी ऑफ द ड्रग विच इज़ अ बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल. अब ये आपको पता है कि दीज आर नॉट द कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स विच एक्ट थ्रू द CNS. तो ये पेरिफेरल सिंपैथेटिक सिस्टम पे काम करते हैं एंड दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द सिम्टम्स ऑफ द एंजाइटी. जो भी आपको सोमैटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक आपको टैकीकार्डिया हो रहा है, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, एंशियस फील हो रहा है, फियरफुल फील हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, BP को कम करेंगे, हार्ट रेट को कम करने में हेल्प करेगा बीटा ब्लॉकर. सो these are usually given where you have to perform, like you have a performance on the stage, like you have to give a lecture on the stage. जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी सोशल एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, सो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस विच या बिफोर द एग्जाम यू टेक प्रोपेनोलॉल. तो दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट आपको अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो हम क्या कहते हैं, जितने भी आपको ट्रेमर्स आ रहे हैं या जितने भी आपको टैकीकार्डिया हो रहा है, दैट विल सेटल डाउन आफ्टर यू टेक बीटा ब्लॉकर. ठीक है. सो दे आर यूजुअली लेस इफेक्टिव बट वेरी वेरी इफेक्टिव और द फर्स्ट लाइन इन द परफॉर्मेंस एंजाइटी और द सोशल एंजाइटी पेशेंट्स. ठीक है. बट आपको किस में ध्यान रखना है, अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले पेशेंट के अंदर, डायबिटिक पेशेंट के अंदर, इन सबको आपको ध्यान रखते हुए बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं. सो नाउ कम्स द समरी ऑफ द एंजाइटियोलिटिक्स. एंजाइटियोलिटिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से एंजाइटियोलिटिक्स हैं. हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स हैं, SSRI है, TCAs या फिर बस्पिरॉन या फिर बीटा ब्लॉकर्स. ये कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हैं, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, OCD, सारी जगह पे आप किन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, SSRI प्लस बेंजोडाइजेपिन्स आर द प्राइमरीली ड्रग्स. अगर आपको एंजाइटी विद डिप्रेशन हो रहा है तो यू कम्स टूवर्ड्स द TCA वाले ड्रग्स. एंड बस्पिरॉन आप कहाँ देते हैं, जहाँ पे भी माइल्ड एंजाइटी है बट जिधर पैनिक अटैक इन्वॉल्व नहीं हो, वहाँ पे आप बस्पिरॉन वाली कैटेगरी या जीपिरॉन वाली कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं. सोशल एंजाइटी है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, वहाँ पे आप बीटा ब्लॉकर्स देते हैं. सो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या दोगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमने बात कर ली थी, SSRI या SNRI, डुलोक्सिटिन या वेनाफ्लेक्सिन लोएस्ट डोज के अंदर स्टार्ट करना है. एंड आफ्टर 1 वीक उनका एक्शन इंक्रीज होने लग जाएगा या एक्शन आने लग जाएगा विदिन 2 वीक्स. और साथ में तब तक आप बेंजोडाइजेपिन ऐड कर सकते हो अगर पेशेंट को सीवियर एंजाइटी. फिर धीरे धीरे आप टेपर ऑफ करके बेंजोडाइजेपिन्स को हटा देंगे एंड देन यू विल कंटिन्यू विद SSRI और SNRI. ठीक है. सो व्हाट आर द न्यूअर ड्रग्स इन द कैटेगरी of the anxiety, that is vilazodone. तो that is another drug which is 5-HT1 partial agonist. जैसे बस्पिरॉन लाइक ड्रग ही है. अगेन it shortens the delay of anti-anxiety actions and decreases the SSRI side effects. तो जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं विद द एंशियस फीचर्स आप उनके अंदर दे सकते हो, या फिर एगोमेलेटिन भी दे सकते हो. इट इज़ अ मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड 5-HT2C रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है. या फिर ब्रेक्सपिप्राजोल. तो ब्रेक्सपिप्राजोल क्या है, D2D3 रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिस्ट है एंड इट इज़ अ वेरी गुड एडजुएंट ड्रग इन द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पेशेंट्स which will prevent the anxious symptoms. So all these are the newer drugs which you should be knowing. So yeah, this is all for today's lecture. Thank you so much. This is all you should be knowing about the anti-anxiety drugs. इतना ही आपको पता होना चाहिए. If you like the lecture, do share, like and subscribe the channel. Thank you so much for your patient hearing. Bye bye.